No, डीप sir, योगा वाला we can start. It's 10. ओके। Sir, गुड। sir, एक मिनट योगेश जी, जी जी। विश्वजीत जी हो गए 10 बजे क्या? हाँ sir, it's 10 sir. तो सबको प्रणाम फिर से एक बार 10वें दिन इस नेताजी सुभाष स्टेशन सेंटर कोलकाता के द्वारा आयोजित किए जा रहे भारतीय खेल प्राधिकरण और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के इस मंच पर जो ई पाठशाला पिछले 10 दिनों से लगातार आयोजित की जा रही है, आज निरंतरता के साथ इसका 10वां दिन है और आज हम लोग योग के कुछ आसन करेंगे, योग कुछ जो पोस्चर्स होते हैं उनको परफॉर्म करेंगे। इस पाठ्यक्रम में या 10 दिन से चल रहे इस पूरे उपक्रम के अंदर योग को शामिल किया गया है और ये लगभग सारे खेलों की जो ई पाठशालाएं साई के द्वारा आयोजित की जा रही है उसमें शामिल किया गया है। इसको शामिल क्यों किया गया है, इसके पीछे मैं थोड़ी सी आपको एक उसकी अवधारणा बता देता हूँ ताकि बच्चों आप लोग को ऐसा नहीं लगे कि टेबल टेनिस का और योग आसन का आपस में क्या लेना देना है या क्या लिंक है। अलग अलग यदि भारत के अपन अपने देश की बात करते हैं तो इन आवर कंट्री द बिगेस्ट one of the main pillar of our democracy is called bureaucracy, and there is a academy that is known as Officers Training Academy that is in Mussoorie, Dehradun. So if you go there, उधर नीचे। if you will go there and whenever you will visit that side, so you will find there is a sort of couplet. This in Hindi, in Sanskrit we used to say sukti is written there, which is saying yoga karmasu kaushalam. Yoga karmasu kaushalam. This word or this sukti has been derived from Bhagavad Gita, in which they are describing yoga, that whatever work, whatever assignment has been given to you by your office, by the mother nature, by your family, by your society, whatever assignment has been given to you, if you are executing that assignment in perfect efficiency, that itself means you are performing yoga. That means yoga karmasu kaushalam. Efficiency or dexterity of in your efforts of the work assigned to you is योग, योग कर्मसु कौशलम। इसका मतलब केवल ये नहीं होता है कि कुछ सर्टेन पोस्चर्स आप बना रहे हैं तो वही योग है, नहीं। दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ द योग, दैट इज नोन एज आसन्स। Even Maharishi Patanjali has also elaborated Ashtanga Yoga, Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Dhyan, Dharana, Samadhi. So there are various clusters of yoga. So if you are a table tennis player and if you are playing table tennis with utmost dexterity, with utmost efficiency, with perfect dedication, that is also you can achieve that status, you can achieve that cluster, that level through performing some yogic asanas or yogic activities. There is one another sukti in yoga which is saying that samatvam yog uchyate. What is samatvam yog uchyate means simply you just take a flower of rose. आप लोग एक गुलाब का फूल लीजिए और उस गुलाब के फूल को आप किसी अगरबत्ती की फैक्ट्री में ले जा करके रख दीजिए। 1 घंटे बाद आप उस गुलाब के फूल को बाहर लेकर आइए और you just smell that rose. Still you will have the fragrance of rose only. Similarly, you just throw that rose in a garbage area. किसी कचरे के ढेर के अंदर आप उस गुलाब को फेंक दीजिए। 1 घंटे बाद आप वापस उस गुलाब को लेकर के आइए और आप फिर से उसको सूंघिए तो कचरे की बदबू उस गुलाब में से नहीं आएगी, उस गुलाब में से गुलाब की ही खुशबू आएगी। So the gist of the story is that rose has maintained his uniqueness. The rose has maintained his identity. Similarly, yoga is a procedure to join your conscience with your conscious. This is what I said in last Friday also, कि हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, हमारी 5 कर्मेंद्रियां बताई गई हैं, 5 वर्किंग ऑर्गन्स जो हमारे मेन बताए गए हैं, उन 5 वर्किंग ऑर्गन्स को हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स के साथ में जोड़ देना, ज्ञानेंद्रियों को कर्मेंद्रियों से लिंक कर देना ही योग है। तो
That's why this yoga is joined in this program, and the more you will perform yogic asanas, yogic kriyas, sometimes even pranayam. प्राणायाम जो है वो हमारे जो आरोह अवरोह है श्वासों का, दैट इज इनहेल एंड एक्सहेल, जिसको कि पूरक, कुंभक या रेचक अभी हमारे आज के जो स्पीकर हैं योगेश जी आपको और बताएंगे, साथ के साथ कुछ परफॉर्म भी करवाएंगे। तो बच्चों बस इसीलिए योग को इस प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करवाया गया है, योग को इस ई पाठशाला के अंदर जोड़ा गया है। दो तीन चीजें जो इस आज की एक्टिविटीज, क्योंकि कल हमने जब बात करी थी तो यही बात की गई थी दैट टुडे वी विल बी परफॉर्मिंग सम एक्टिविटीज, so few things to remember that please don't perform it on barefooted directly on surface. आप नीचे कोई भी एक मोटी चद्दर, सम थिक बेडशीट या कोई कारपेट या कोई मोटा तौलिया, या आजकल योग मैट्स भी आती हैं. If you all are having yoga mats, there is no problem. If not having, no problem at all. You can have some bed sheets or some daris, carpets. मतलब कोई ऐसी चीज हो कि आपको नंगे पैर जमीन पे खड़े होकर के एक्टिविटी नहीं करनी पड़े. Second thing, asanas are helping you to increase your flexibility. Don't increase beyond your comprehension. Don't expand, don't flex your body beyond your comprehension. जितनी सामर्थ्य, जितनी शक्ति हमारा शरीर हमको दे रहा है और हमारे टेंडन्स और लिगामेंट्स जितनी लोच, जितनी खिंचाव को बियर कर सकते हैं, कृपया उतना ही जाएं. आपसे पुनः विनम्र निवेदन है, अपनी क्षमता, अपनी शक्ति को आज ही एकदम से आप नहीं बढ़ा पाएंगे. यदि आपको किसी भी पर्टिकुलर आसन को करने में, पोस्चर को परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उतना ही करें जितना आप कर पा रहे हैं, या जितना खिंचाव आपका शरीर का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो एंड्योरेंस है, वो उसको बियर कर पा रहा है, आप उतना ही उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें, उसके बियॉन्ड नहीं जाएं. थर्ड रिक्वेस्ट, आई requested it yesterday also, that we have received a strong intimation from Sports Authority of India that those who are attending these sessions are requested to not post their name or some time wishes or hello, good morning, good evening. These all things are not at all required. We can say it or we can do it after completion of the session on the personal numbers to whomever you wants to wish. So ये तीन चार कुछ छोटे छोटे instructions हैं. No problem at all. यदि आपने अभी तक कर दिया है तो, but another 10 days are remaining with us, so please refrain yourself in posting such time wishes or revealing your identity. That is for sure कि जो आपका मोबाइल नंबर है या मोबाइल का जो आपका आइडेंटिटी है, उस मोबाइल की आइडेंटिटी में अपना नाम जरूर डाल दीजिए आप, क्योंकि कई बार हम लोग अगर जब एक्टिविटी को की इमिटेशंस के लिए आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसमें नीचे आपका नाम नहीं आता है, और उसके नीचे किसी न किसी आपके मोबाइल या आपके गैजेट का ब्रांड नेम लिखा हुआ आता है. दैट ब्रांड नेम इज नॉट योर आइडेंटिटी. So please go through with the settings of your gadget, paste your name or whose gadget you are using, maybe your father, mother, brother, whatever. तो इन सारी चीजों को एक बार आप देख लीजिए. और नाउ आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग योगेश मालविया जी. योगेश मालविया जी का परिचय मैं पिछले शुक्रवार को भी आपको दे चुका हूँ. मध्य प्रदेश के आप बहुत अच्छे प्रतिष्ठित योग गुरु हैं. भारतीय योग टीम के साथ भी आपने प्रदर्शन किया हुआ है. टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में आपकी टीम फर्स्ट रनर अप रह चुकी है. तो योगेश जी, द स्टेज इज योर्स. कृपया शुरू करें. थैंक यू सर. सर ने जैसे हम लोगों को इतनी सारी डिटेल योग के बारे में आपको बताइए, पहले ही ब्रीफ किया गया है. सबसे पहला, जैसा कि सर ने बताया कि योग हमको यथाशक्ति करना है. योग का मंत्र है समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञा यथाशक्ति निरंतरम. सभी व्याधियों का समाधान योग है, लेकिन निरंतर अभ्यास करने से और यथाशक्ति करना है. टेबल टेनिस में योग किस प्रकार सहायक हो सकता है, आज इसके लिए पूरा विश्व योग के पीछे लगा हुआ है. तो टेबल टेनिस में योग का बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है. टेबल टेनिस खेल कंसंट्रेशन का खेल है, साथ में हमको फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, इसकी भी आवश्यकता होती है. तो आज जो हम योगासन के जो पोस्चर लेके आए हैं, वो सभी टेबल टेनिस से रिलेटेड है कि आपके परफॉर्मेंस को और अधिक बढ़ा सके. तो सबसे पहले हम उसके लिए, क्योंकि हम शारीरिक फील्ड से आए हैं, तो हमको फिटनेस एक्सरसाइज करना थोड़ी सी जरूरी रहती है. कोई भी हम पोस्चर करेंगे तो आप उसमें कहीं चोट लगने का डर ना रहे.
तो सबसे पहले हम सूक्ष्म योगिक व्यायाम के अंतर्गत हम सिंपल जंप जो हम करते हैं 25 करेंगे। स्टार्ट करना है सिंपल जंप। अपनी जगह पर सभी लोग खड़े हो जाएंगे, अपनी जगह पर जंप करना है। अपनी जगह पर खड़े होकर 25 जंप करना है। श्वास अपनी सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। देन चेंज कपलिंग रोप जंपिंग करना है अपनी जगह पर खड़े होकर 25। देन चेंज रिदमिक एक्सरसाइज इसी में। देन चेंज कपलिंग। टेबल टेनिस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक्सरसाइजों में से जंप में मानी जाती है। आप सभी लोगों को अपने अपने सेंटरों पे यह नियमित कराई जाती है। देन रिलैक्स। अब हम करेंगे सूक्ष्म योगिक व्यायाम। सबसे पहले इसमें गर्दन से शुरू करेंगे। श्वास दोनों हाथ कमर के ऊपर रखना, दोनों पैर के एड़ी पंजे मिला लीजिए। अब श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाना है। 1 श्वास भरते हुए लेके जाइए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने चिन्ह को कंठकूट की तरफ लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। एक बार फिर से वापस श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की ओर लेके जाना है, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास भरते हुए। फाइनल पोजीशन में अपने चिन्ह को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ प्रेस करना है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने चिन्ह को कंठकूट की तरफ लेके आना, बिल्कुल धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। फाइनल पोजीशन में अपने चिन्ह को कंठकूट से लगाना है। इस स्थिति में हमारे शरीर के पीछे वाला भाग, पीठ से लेकर गर्दन तक के भाग पर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है। एक बार फिर से सांस भरते हुए बिल्कुल धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर की ओर लेके जाना है। फाइनल पोजीशन में अपने चिन्ह को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ लेके जाना है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने चिन्ह को कंठकूट से लगाना है। ये जो एक्सरसाइज है जब हम जनरल वालों करते हैं उस समय ध्यान देने के लिए वापस सेंटर पॉइंट में आना है। अब इसी प्रकार श्वास भरते हुए गर्दन को अपने राइट साइड लेके जाना है। श्वास भरते हुए गर्दन को राइट साइड लेके जाइए, बिल्कुल धीरे धीरे। दोनों पैर के एड़ी पंजे मिला के रखना। फाइनल पोजीशन में दोनों कंधे गर्दन एक सीध में लाने की कोशिश करना है। फिर से वापस बिल्कुल धीरे धीरे गर्दन को मध्य स्थिति में लेके आना, सांस छोड़ते हुए। इसी प्रकार सांस भरते हुए अपने लेफ्ट साइड लेके जाना है, उल्टे हाथ की तरफ जाना है। सांस भरते हुए उल्टे हाथ की तरफ लेके जाइए, बिल्कुल धीरे धीरे। फाइनल पोजीशन में दोनों कंधे गर्दन एक सीध में रहेगी। इस स्थिति में राइट साइड पर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है, लेफ्ट साइड पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है। इस खिंचाव और दबाव को महसूस करना है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए गर्दन को सेंटर पोजीशन में लेके आना है। एक बार फिर से गर्दन को सांस भरते हुए राइट साइड लेके जाना है। शुरू करेंगे, सांस भरते हुए लेके जाइए राइट साइड। फाइनल पोजीशन में दोनों कंधे गर्दन एक सीध में लाना है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए मध्य स्थिति में लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे। अब इसी प्रकार सांस भरते हुए गर्दन को वापस लेफ्ट साइड लेके जाना है, सांस भरते हुए। एक बार फिर से सांस छोड़ते हुए गर्दन को सेंटर पॉइंट में लेके आना है। यहाँ पर सांस लेना और छोड़ना कंटिन्यू करना, सांस को रोकना नहीं है आपको ब्रीदिंग को। अब इसी प्रकार सांस भरते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड लेके जाना है, अपने राइट साइड लेके जाना है। गर्दन को राइट साइड लेके जाइए, सीधे कान को सीधे कंधे से लगाने की कोशिश करना सांस भरते हुए। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए सेंटर पॉइंट में लेके आना है। अब इसी प्रकार सांस भरते हुए राइट साइड लेफ्ट साइड लेके जाना है। सांस भरते हुए कोशिश करना है कि अपने बाएं कान को बाएं कंधे से नीचे लगाना है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए मध्य स्थिति में लेके आना है। फिर से वापस सांस भरते हुए
राइट साइड लेके जाना है, बिल्कुल धीरे धीरे। फिर से वापस सेंटर में लेके आना है, सांस छोड़ते हुए, देन रिलैक्स। अब इसी प्रकार गर्दन को राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके जाना, लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके आना। अभी जो हमने तीनों मूवमेंट किए जिसमें खिंचाव और दबाव को महसूस किया था, उसी खिंचाव और दबाव के साथ अपने मूवमेंट को, गर्दन को रोटेट करना है। शुरू करेंगे। इसमें श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके जाना है, 1, इसमें सांस सामान्य चलने देना, सांस को रोकना नहीं है। 2, फिर से वापस लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे मूवमेंट करना है। देन फिर से वापस सांस सामान्य चलते हुए बिल्कुल धीरे धीरे मूवमेंट करना है, बिल्कुल धीरे धीरे सांस सामान्य चलने देना है। फिर से वापस चिन्ह को कंठपुट से लगाना है। फिर से एक बार फिर से करेंगे। देन सेंटर पॉइंट में लेके आना है, दोनों हाथ मिला के रखना है, सांस सामान्य चलने देना है। दोनों हाथ साइड में रखिए, दोनों पैर के एड़ी पंजे मिला के रखना है। अब सांस भरते हुए अपने सीधे हाथ को कंधे के सीध में उठाना है, सांस भरते हुए उठाइए। वैसे तो टेबल टेनिस में शरीर के प्रत्येक अंग का एक्टिव होना अनिवार्य है, लेकिन शोल्डर और हाथों की स्ट्रेंथ के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है और किसी ऊपर की तरफ। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे की तरफ लेके आना है, सांस छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे। जितना अच्छा हमारे शोल्डर की स्ट्रेंथ होगी, हमारे को टेबल टेनिस में उतना अधिक लाभ होता है। फिर से वापस सांस भरते हुए लेफ्ट साइड में उठाना है, बिल्कुल धीरे धीरे। इसमें ध्यान देना है, जब हम धीरे धीरे उठाते हैं तो हमारे हाथ के पंजे से लेकर शोल्डर तक के भाग पर अतिरिक्त खिंचाव हो रहा है, पूरा सांस भरना है, चेस्ट को फुलाना है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ लेना, सांस पेट से बाहर निकालना है, कोशिश करना है पूरी सांस बाहर निकालना है। इसी प्रकार सीधे हाथ से करेंगे। सांस भरते हुए अपने सीधे हाथ को उठाइए कंधे के सिर में। फाइनल पोजीशन में अपने सीधे हाथ को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ खींचना है और खींचिए ऊपर की तरफ, हाथ कान से लगाना है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे की तरफ लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे। एक बार फिर से लेफ्ट साइड से करेंगे। सांस भरते हुए अपने उल्टे हाथ को उठाइए, बिल्कुल धीरे धीरे सांस भरते हुए उठाइए। फाइनल पोजीशन में अपने हाथ को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ खींचना है और खींचिए। दूसरा हाथ हमारी जांघ से लगा हुआ रहेगा। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे की तरफ लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे। अब इसी प्रकार हाथ को कंधे के सीध में, साइड से कंधे के सीध में उठाना, सीधे हाथ को उठाइए, सांस भरते हुए बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे उठाना है, सांस भरते हुए उठाइए सीधे हाथ को। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को लाना है। इसी प्रकार सांस भरते हुए एक बार फिर से अपने उल्टे हाथ को उठाना है, सांस भरते हुए उल्टे हाथ को उठाइए। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को यथास्थिति में लाना है। एक बार फिर से सांस भरते हुए अपने सीधे हाथ को कंधे के सीध में उठाइए। दूसरा हाथ हमारी जांघ से लगा हुआ रहेगा। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे की तरफ लेके आना है, फेस के ऊपर तनाव नहीं देना है, फेस को स्मूथली रखना है। एक बार फिर से सांस भरते हुए अपने उल्टे हाथ को कंधे के सीध से उठाइए, बिल्कुल धीरे धीरे। जब हम इसको उठा रहे हैं तो हमारे हाथों के ऊपर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेके आना है। एक बार फिर से इसी पुनः करेंगे। सांस भरते हुए हाथ को कंधे के सीध में उठाइए, सीधे हाथ को सांस भरते हुए ज्यादा से ज्यादा सांस भरना है और छोड़ते समय ज्यादा से ज्यादा सांस को बाहर छोड़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे। एक बार फिर से सांस भरते हुए अपने बाएं हाथ को उठाना है कंधे के सीध में। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे की तरफ लेके, अब इसी प्रकार दोनों हाथ की तरफ रखिए। अब श्वास भरना है, पूरा श्वास भरिए,
श्वास भरने के बाद हाथ को 5 बार घुमाना आगे की तरफ। शुरू करेंगे 1, हाथ कान के पास से निकाल लीजिए, 2, 3, 4, देन 5। झटके से सांस को बाहर छोड़ना है। एक बार फिर से सांस भरते हुए मुट्ठी बांधिए हाथ की। शुरू करेंगे 1, हाथ कान के पास से निकालिए, 2, 3, 4, 5। झटके से सांस को बाहर छोड़िए। एक बार फिर से सांस भरिए। शुरू करेंगे, फिर से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। हाथ को बाहर छोड़ना है। एक बार इसी प्रकार बैक साइड से करेंगे, रोटेशन करेंगे पीछे। 1, 2, बड़े से ज्यादा बड़ा सर्कल बनाना। 3, 4, 5। एक बार फिर से श्वास भरिए, पूरा श्वास भरिए, सीने को फुलाइए। शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। झटके से सांस को 3, 4, 5। झटके से सांस को बाहर छोड़िए। अब इसी प्रकार अपने सीधे हाथ की कलाई बनाए, सीधे हाथ की मुट्ठी बनाइए, सीधे पैर के पंजे को बाहर निकालिए, कलाई को रोटेट करना है। राइट, सांस सामान्य चलने देना, सांस को रोकना नहीं है। 1, 2, हाथ पैर के पंजे के मूवमेंट भी करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज अपोजिट साइड से करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज लेना है। लेफ्ट हैंड से करना है। मुट्ठी बांध के रखिए, अंगूठा अंदर की तरफ रखना है। शुरू करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज लेना है अपोजिट साइड से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब चेंज लेना है। दोनों हाथ की कलाई को घुमाना, दोनों हाथ की कैंची बनाइए, दोनों हाथ की कैंची बनाइए, कैंची को रोटेट करना है। शुरू करना है 1, 2, श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। देन चेंज दूसरी तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों हाथों को कोहनियों से मुड़ के कंधे के पास में रखिए। इसमें भी श्वास सामान्य चलने देना है, श्वास को रोकना नहीं है। शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से चेंज, पीछे बैक साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, चेंज लेना है। दोनों हाथ कंधे के सिर में रखिए। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए। जिन लोगों को कंधे में या गर्दन में समस्या रहती है, उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। शुरू करेंगे। इसको रोटेट करना है, जिस प्रकार हम हाथ को घुमाते उसी प्रकार पंजे अपनी तरफ रखना, 10 बार करना है। हाथ बिल्कुल कोहनी से सीधे रखना है। 10 बार पूर्ण होने पर बैक साइड घुमाना है। 1, बैक साइड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज रखना है। दोनों हाथ कमर के ऊपर रखना है, कमर को रोटेट करना है। श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं। शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज 1, अपोजिट साइड से 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखिए, रोटेट करना है, अंदर से बाहर की तरफ निकालना, दोनों पैरों के ऊपर वजन देके शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन चेंज, बाहर से अंदर की तरफ लेके आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम सीधे खड़े होना है। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार सभी लोग करते होंगे अपने कंडीशनिंग सेशन में भी, और जनरल वार्म अप के रूप में भी आपको आपके कोचेस या आपके सेंटरों में नियमित अभ्यास कराया जाता होगा। सूर्य नमस्कार करने से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल बढ़ता है। अब आज जो हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, इसको श्वास प्रश्वास के साथ करना है। जब आप इसको श्वास प्रश्वास के साथ करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल और ज्यादा बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, इंडोरेंस भी बढ़ता है। शुरू करेंगे। अर्ध दाहिने होना है, अर्ध दाहिने, थोड़ा और आगे आना है। दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाना है, दोनों हाथ साइड में रखना है, हथेलियां अपनी जांग से लगा के रखना है। 1 श्वास भरना है, नमस्कार मुद्रा, श्वास भरना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। 2 श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे बैक साइड लेके जाना है, यथाशक्ति करना है। जैसा कि सर ने पहले ही बताया आपको, जितनी अपनी क्षमता हो उतनी करना है, पीछे बैक साइड जाना है। 3 श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन में आना है, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को पूरा बाहर छोड़ना है, अपने सिर को घुटने से लगाना है। 4 श्वास भरते हुए अपने बाएं पैर को पीछे लेके आना, अपने लेफ्ट पैर को पीछे लेके आना है, दोनों हाथ के बीच में अपने राइट पैर को रखना है, राइट लेग को रखना है। 5 अपने दूसरे पैर को पीछे लेके आना है। ये महत्वपूर्ण पोजीशन है, पठार आसन। सामने देखना है, कमर और हिप्स अपनी एक सीध में रखना है। 6 अष्टांग टिकाना है, दोनों पैर के पंजे, दोनों घुटने, दोनों हाथ के पंजे और नाक और कपाल को जमीन पर लगाना है। इस स्थिति में ना तो श्वास भरना है, ना श्वास को बाहर छोड़ना है, रोक के रखना है। 7 श्वास भरते हुए भुजंग आसन में आना है। फाइनल पोजीशन में अपने दोनों कंधों को भी पीछे लेके आना है, एड़ी मिला के रखना है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोजीशन मानी जाती है। इस स्थिति में हमारी कमर से लेकर गर्दन तक के भाग पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। दोनों कंधों को पीछे रखो मोनू। 8 श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों की एड़ियों को जमीन पर टिकाना है। वैसे सारी पोजीशनें महत्वपूर्ण है सूर्य नमस्कार की, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। 9 अपने लेफ्ट पैर को आगे लेके आना, दोनों हाथ के बीच में, ऊपर देखना आसमान की तरफ। इस स्थिति में हमारी लीवर के ऊपर अतिरिक्त दबाव होता है, घुटने से लेकर जांघ से हमारा पैर दबता है। 10 अपने दूसरे पैर को आगे लेके आना है, सिर को घुटने से लगाना है, पाद हस्तासन, श्वास को पूरा बाहर छोड़ना है। 11 श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे बैक साइड लेके जाना है, बैक साइड लेके जाइए। 12 नमस्कार मुद्रा में आना है, वापस दोनों हाथों को नीचे लेके आना है। ये सूर्य नमस्कार की जो 12 स्थिति है, 12 ही स्थितियों का बड़ा महत्व है। एक बार फिर से करेंगे हम, श्वास प्रश्वास के साथ नमस्कार मुद्रा में आना है। श्वास भरते हुए 1 श्वास भरना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। अब 2 में लंबी गहरी सांस लेना है और दोनों हाथों को पीछे लेके आना है। 2 श्वास भरते पीछे बैक साइड जाइए। 3 श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हुए हाथ को नीचे लेके आना है, अपने सिर को घुटने से लगाना है। 4 अपने बाएं पैर लेफ्ट पैर को पीछे लेके आना है, दोनों हाथों के बीच में राइट पैर को रखना है। 5 अपने राइट लेग को पीछे लेके आना है।
अपनी कमर और इसको एक सीध में रखना है। 6 अष्टांग टिकाना है, दोनों पैर के पंजे, दोनों घुटने, दोनों हाथ के पंजे, नाक और कपाल को जमीन पर लगाना है। इसमें श्वास लेना, ना श्वास को बाहर छोड़ना है। कुंभक की स्थिति में रोक के रखना है। 7 श्वास भरते हुए भुजंगासन में आना है, दोनों हाथ कोहनी से सीधे रखना है। 8 श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों की एड़ियों को जमीन पर लगाना है, घुटनों को, दोनों हाथों को दोनों पैरों के घुटने सीधे रखना है, घुटनों की तरफ देखना है। 9 अपने बाएं पैर को आगे लेके आइए, अपने लेफ्ट पैर को दोनों हाथों के बीच में रखना है। श्वास भरते हुए आसमान की तरफ देखिए, सीधे पैर के घुटने को जमीन पर टिका के रखना है, सीधे पैर के घुटने को जमीन पर टिका के रखिए। 10 अब श्वास छोड़ते हुए सिर को घुटने से लगाइए, दोनों हाथ अपनी जगह पर यथा स्थिति में रहेंगे, पादहस्तासन। 11 श्वास भरते हुए नमस्कार मुद्रा में बिल्कुल धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे बैक साइड जाना है। 12 श्वास छोड़ते हुए वापस नमस्कार मुद्रा में आना है, दोनों हाथ यथा स्थिति में लेके आना है। एक बार फिर से इसी को हम करेंगे, 3 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहे हैं हम। श्वास भरते हुए नमस्कार मुद्रा में आना है। 1 श्वास भरना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। अब लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है, ताड़ासन में, पीछे बैक साइड। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे लाइए। 3 पादहस्तासन। इस आसन की स्थिति में हमारे लीवर, पैनक्रियास पर अतिरिक्त दबाव आता है। 4 अपने बाएं पैर को पीछे लेके जाना है, श्वास भरना है, चिन्ह को और ज्यादा ज्यादा प्रेस करना है। 5 अपने राइट लेग को पीछे लेके जाना है, सामने देखना है। इस स्थिति में जब हम सामने की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखों के ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, आंखों के लिए ये स्थिति बहुत महत्वपूर्ण स्थिति मानी गई है। 6 अष्टांग टिकाना है, इस स्थिति में ना श्वास भरना है ना श्वास को बाहर छोड़ना है, कुंभक की स्थिति रहती है। 7 श्वास भरते भुजंगासन में आना है। 8 दोनों पैरों की एड़ियों को जमीन पर लगाना है, घुटनों की तरफ देखना है। 9 अपने बाएं पैर को आगे लेके आना है, दोनों हाथों के बीच में, दोनों पैरों के ऊपर समान वजन, दोनों हाथों के ऊपर समान वजन देना है। 10 पादहस्तासन में आना है, सिर को घुटने से लगाना है। 11 दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है। 12 नमस्कार मुद्रा, वापस सीधे खड़े होना है, फेस मेरे इधर करना है। अभी हमने बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग किया है। अब हमको सूर्य, जब भी हम सूर्य नमस्कार लगाएं उसके बाद अर्ध चक्रासन जरूर करना चाहिए सभी लोगों को। शुरू करेंगे अर्ध चक्रासन। सीधे हाथ को कंधे के सीध में उठाना है। 1 हाथ की हथेलियों को आसमान की तरफ घुमाना है। 2 हाथ की हथेलियों को आसमान की तरफ घुमाइए। 3 हाथ को कान के पास लेके जाना है, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए, हाथ को कोहनी से सीधा रखना है। 4 अपनी दाहिनी तरफ झुकना है, दाहिने हाथ के पंजे को दाहिने घुटने से नीचे ले जाना है, पीछे नहीं जाना है, दोनों हाथ कोहनी से सीधा रखो। इस स्थिति में हमारे शरीर के दाहिनी तरफ अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है, शरीर के बाईं तरफ अतिरिक्त दबाव आ रहा है, हाथ कोहनी से सीधा रखना है, आगे नहीं आना है ज्यादा, दोनों पैरों के ऊपर समान वजन देना है, आसन छोड़ना है वापस। 1 श्वास भरिए, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए, हाथ कोहनी से सीधा रखिए और खींचो ऊपर की तरफ, वापस हाथ को कंधे के सीध में लेके आना है। 2 श्वास छोड़ते हुए 3 में वापस श्वास भरना है, हथेली को घुमाना है जमीन की तरफ, 4 में हाथ छोड़ते हुए वापस हाथ को नीचे लेके आना है।
इसी प्रकार हम लेफ्ट हैंड से करेंगे। 1 में श्वास भरते हुए अपने हाथ को कंधे की सीध में उठाना है। 1, पूरा लंबा गहरा श्वास भरिए। 2 में श्वास छोड़िए, हथेली आसमान की तरफ घुमाइए। 2, 3 में श्वास भरते हुए हाथ को कान के पास लेके आना है। 3, पूरे सांस को भरिए, ज्यादा से ज्यादा हाथ को ऊपर की तरफ खींचिए। 4, सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड झुकना है। सीधे हाथ के पंजे को सीधे घुटने से नीचे ले जाना है। इस आसन की स्थिति में अब यहाँ पर सांस सामान्य चलने देना, सांस को रोकना नहीं है, सामान्य सांस लेना है। इस आसन की स्थिति में जब हम राइट साइड झुक रहे हैं तो हमारी लेफ्ट साइड अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है, राइट साइड पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है। इस खिंचाव और दबाव को महसूस करना, हाथ को नीचे सीधा रखना है। सभी लोगों को आसन छोड़ना है। फिर से हाथ को कंधे की सीध में उठाना है। 1, हाथ ऊपर की तरफ खींचिए और खींचिए। 2, हाथ कंधे के सीध में लेके आइए, हथेलियां घुमाना है। 3, हाथ को नीचे लेके आना है। 4, अभी हमने खड़े होने वाले आसनों में सूर्य नमस्कार और अर्ध चक्रासन किया है। अब हम पीठ के बल लेटने वाले आसनों में करेंगे। पोजीशन लेना, पीठ के बल लेटना है। सीधे लेट जाइए, थोड़ा अर्ध दाहिने होना है। पीठ के बल लेट जाइए। लास्ट टाइम हमने जो लास्ट सेशन हुआ था, हमने अर्ध पवन मुक्तासन किया था एक एक पैर से। अभी हम दोनों पैरों से शुरू कर रहे हैं पवन मुक्तासन। दोनों पैरों से पवन मुक्तासन करना है हमको। दोनों पैरों को, जैसा कि इस आसन का नाम ही पवन मुक्त आसन है, जो हमारे शरीर में अगर कोई दूषित वायु रहती है तो इस आसन को करने से दूषित वायु बाहर होती है। इस आसन की स्थिति में हमारे पेट पर अतिरिक्त दबाव आता है। शरीर के पीछे वाला भाग, गर्दन से लेकर कमर तक के भाग पर अतिरिक्त खिंचाव आता है। शुरू करेंगे पवन मुक्तासन, पूर्ण पवन मुक्तासन। दोनों पैरों से हम पवन मुक्तासन कर रहे हैं। दोनों पैरों को 30 डिग्री एंगल उठाना है, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, देन 90 डिग्री एंगल। इस स्थिति में रोक के रखना है। जैसा कि सर ने आपको पहले ही ब्रीफ किया था, आसन को यथाशक्ति करना है हमको। आसन करने से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल बढ़ता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। इस आसन की जब 90 डिग्री के एंगल पर हम ला के रखें तो हमारे पेट के ऊपर अतिरिक्त दबाव आ रहा है। अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना है, पेट की तरफ लेके आना है, सांस को पूरा बाहर छोड़ना है। दोनों हाथ की कैंची बनाना है, घुटने को ज्यादा ज्यादा पेट की तरफ दबाना है, पूरा सांस बाहर छोड़िए, सांस को बाहर छोड़ना है। अब सांस भरते हुए अपनी गर्दन को उठाना है, चिन्ह को कंठपुट से लगाना है, फाइनल पोजीशन में एक स्थिर अवस्था में रोकना है। इस स्थिति में हमारी सांस को सामान्य चलने देना, सांस को रोकना नहीं है। पवन मुक्त आसन, अपनी सांस को सामान्य स्थिति में चलने देना, सांस को रोकना नहीं है। दोनों घुटने पेट की तरफ लगे हुए रहेंगे। अब लंबी गहरी सांस भरना है और लंबी गहरी सांस भरने के बाद सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके जाना है। 1, सिर को जमीन पर लगाइए। 2 में दोनों हाथों की कैंची को खोलना है, हथेलियां जमीन पर रखना है। अब सांस भरते हुए पैरों को 90 डिग्री एंगल तक सीधा करना है। 3, सीधा करिए 90 डिग्री एंगल तक पैर को। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैरों को 60 डिग्री एंगल। इस आसन में उत्तान पादासन के लाभ मिलते हैं। इस आसन से किडनी के ऊपर अतिरिक्त प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे पैर को 45 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, देन रिलैक्स। अभी जो हमने किया है इस आसन का नाम है पवन मुक्त आसन। अब हम करेंगे सर्वांगासन। दोनों पैरों को धीरे, सर्वांगासन जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है कि शरीर के संपूर्ण अंग का व्यायाम होता है। इसके सर्वांगासन करने से हमको शीर्षासन के भी लाभ मिलते हैं। जब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपके ऊपर जो मैं जो बताते जाऊंगा, आप उसके ऊपर दबाव और खिंचाव को महसूस करिए।
शुरू करेंगे सर्वांगासन। दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री एंगल उठाना है, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, देन 90 डिग्री एंगल। पैरों को घुटने से सीधा रखना 90 डिग्री एंगल पर। अब दोनों पैरों को सिर के पीछे लेके जाना है। अब दोनों पैरों को, दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ के कमर के ऊपर रखिए। अब दोनों हाथ से कमर को आगे की तरफ दबाइए। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाना है और लेके जाइए दोनों पैरों को ऊपर की ओर। इस स्थिति में हमारे चिन्ह को कंठकुप से लगाना है सर्वांगासन। कमर को और आगे दबा, दोनों हाथों को जब हम कोहनियां पास में लेके आएंगे तो हमारे दोनों पैर ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाएंगे। इस आसन की स्थिति में हमारे शरीर पर ब्लड का सर्कुलेशन पैरों से हार्ट की तरफ आ रहा है। इस आसन की स्थिति में थायराइड ग्रंथि पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। चिन्ह को कंठकुप से लगाते हैं तो एक अतिरिक्त दबाव आ रहा है हमारी थायराइड ग्रंथि पे। अब जैसे ही हम आसन को छोड़ेंगे, रिलैक्स, वापस दोनों पैरों को धीरे धीरे सिर की तरफ लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे। दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन पर रखना है, रिलैक्स करना है, आसन को वापस लेके आना है। धीरे धीरे पैरों को 90 डिग्री एंगल तक लेके आना है। 60 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, देन 30 डिग्री एंगल, देन रिलैक्स। शवासन करेंगे। दोनों पैरों में अंतर रखिए, दोनों हाथ की हथेलियां खुली रखना, दोनों हाथों में अंतर रखो, हाथ थोड़े से और दूर रखो। पैरों को भी ढीला छोड़ना है, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखना है, रिलैक्स करना है, आंखें बंद रखना, शवासन करना है, पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। अभी जो हमने आसन किया है, इस आसन को करने से शरीर में अगर कहीं किसी प्रकार का कोई दबाव या खिंचाव आ रहा हो तो अपनी सांस प्रश्वास के पर ध्यान देते हुए भाग को ढीला छोड़ना है और ढीला छोड़ना है। धीरे धीरे हमारे सांस प्रश्वास की गति मंद होती जा रही है और मंद होती जा रही है। अब धीरे से अपनी आंखें खोलना है, दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाना है, दोनों हाथ साइड में रखना है, हथेलियां जमीन पर। अभी जो हमने आसन किया है, इस आसन का नाम सर्वांगासन था। आसनों का महत्व तभी है जब हम इसके विपरीत आसन करते हैं। बैठक स्थिति में आना है। अभी जो हमने आसन किया था मत्स्यासन, सर्वांगासन का विपरीत आसन होता है मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए आप सभी लोगों को पद्मासन बांधना है। एक में पद्मासन बांधिए, बिल्कुल धीरे धीरे। जिन लोगों से आसानी से हो सकता है आसानी से करेंगे। पद्मासन अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग सुखासन में भी कर सकते हैं इस आसन को। दो में पहले देख लीजिए इसको किस प्रकार करना है आप लोग सभी लोग। दो में कोहनियों का सहारा लेके पीठ के बल लेटना है। 3 में दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ के कंधे के पीछे रखिए, कपाल को जमीन पर लगाइए, गर्दन को उठाना है। पहले आपको देखना है, अभी देख लीजिए किस प्रकार करना है। फाइनल पोजीशन में दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ के अंगूठों को पकड़ना है, अपने सिर को जमीन पर लगाना है, दोनों पैर के घुटने जमीन पर लगाना है। इस स्थिति में अपनी सांस सामान्य चलने देना, सांस को रोकना नहीं है। दोनों पैर के घुटने जमीन पर लगा के रखना है। जिन लोगों से कोहनी जमीन पर टिक रही है तो टिकाना है, आसानी से जो टिका सकते हैं उनको टिकाना है, जबरदस्ती नहीं करना है। आसन को वापस छोड़ना है, दोनों हाथ सिर के पीछे रखिए। 1 2 में वापस दोनों हाथ कोहनियों का सहारा लेके बैठक की स्थिति में आना। 2 3 में आसन छोड़ना है, 4 में आसन खोल दीजिए। चलिए अब सभी लोग हम लोग करेंगे शुरू करेंगे। पद्मासन मानना है 1 2 में कोहनियों का सहारा लेके पीठ के बल लेटना है। 2 3 में दोनों हाथ पीछे लेके जाइए सिर के पीछे।
गर्दन को उठाइए, बिल्कुल सावधानी पूर्वक करना है इस आसन को, मत्स्य आसन। फाइनल पोजीशन में दोनों हाथ से पैर के अंगूठों को पकड़ना है और दोनों हाथों की कोहनियों को जमीन पर लगाना है। एक स्थिर अवस्था में रोकना है। इस स्थिति में हमारी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। मत्स्य आसन, हमारी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। इस आसन की स्थिति में जिस प्रकार अभी हमने सर्वांग आसन किया था, इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। सर्वांग आसन में हमने चिन्ह को कंठकुट से लगाया था, इस आसन में हमने चिन्ह से लेकर चेस्ट तक के भाग पर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है। शरीर के पीछे वाला भाग कमर से लेकर गर्दन तक के भाग पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है। इस दबाव और खिंचाव को महसूस करना है। अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। यथाशक्ति करने के बाद दोनों हाथों को सिर के पीछे रखिए। 1 2 में अपनी गर्दन को नीचे लेके आना है। 2 3 में कोहनियों का सहारा लेके बैठक की स्थिति में आना है। 3 आसन को छोड़ना है, दोनों पैरों को खोल लीजिए। 4 अभी हमने पीठ के बल लेटने वाले आसनों में 2 प्रकार के आसन किए हैं। अब हम पेट के बल लेटने वाले आसन करेंगे। पेट के बल लेटने वाले आसनों में लास्ट टाइम जो हमारा सेशन हुआ था, हमने निरालंब भुजंगासन, भुजंगासन, सल्भासन किया था। एक बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति हम लोग करेंगे। तो सभी को आप सभी हम लोग लास्ट टाइम भी हमने इसका आसन का अभ्यास करा था। सभी लोग अब पेट के बल उल्टे लेटेंगे। पेट के बल उल्टे लेटने की स्थिति भी आप देख लीजिए किस प्रकार जब भी हम आसन करते हैं तो आने और जाने का विशेष महत्व रहता है। बिल्कुल धीरे धीरे करना है, जैसा कि सर ने पहले भी आप लोगों को सूचित किया था। और योग का अर्थ ये स्थिर सुखम आसन, मतलब आसन ऐसा होना चाहिए जिसमें स्थिरता और सुख का अनुभव हो, कहीं किसी प्रकार का कहीं उससे तनाव ना हो। सीधे पैर को घुटने से मोड़ना है। वज्रासन की स्थिति में आना है। 2 3 में अपने सीधे पैर को धीरे धीरे खोलना है, जमीन की तरफ लेके जाना है। 4 दूसरे पैर को पीछे की तरफ लेके जाना है। अब पैर थोड़ा उधर अर्ध दाएंगे। हाँ, पेट के बल उल्टे लेट जाइए। ये पेट के बल लेटने की आदर्श स्थिति है। चिन्ह को जमीन पर लगाना है। अब हम करेंगे निरालंब भुजंगासन, बिना हाथों का सहारा लिए निरालंब भुजंगासन। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ के कंधे के पास में रखना है। 1 कपाल को जमीन पर लगाना है। अब नाक को चिन्ह जमीन से टच करते हुए श्वास भरते हुए दोनों हाथों के पंजों को भी उठाना है। साथ में शुरू करेंगे। श्वास भरते हुए उठिए, दोनों हाथ के पंजों को भी उठाइए। अपने दोनों हाथ के पंजों को जमीन से उठाना है। फाइनल पोजीशन में अपने चिन्ह को ज्यादा से ज्यादा आसमान की तरफ देखना है, छत की तरफ देखना है। इस आसन की स्थिति में नाभि से लेकर चिन्ह तक के भाग पर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है। शरीर के पीछे वाला भाग कमर से लेकर गर्दन तक के भाग पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है। आसन को छोड़ना है बिल्कुल धीरे धीरे। दोनों हाथों को नीचे लेके आइए, चिन्ह को जमीन पर लगाइए पहले, फिर से नाक और कपाल को जमीन पर लगाइए। हाथों का सहारा नहीं लेना है, बिना हाथों के सहारा लिए करना है निरालंब भुजंगासन। एक बार फिर से सभी लोग करेंगे इसी आसन को। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ के कंधे के पास में रखिए। एक बार फिर से इसका रिपीटेशन लेना है। कपाल को जमीन पर लगाइए, नाक चिन्ह जमीन पर लगे रहेंगे। अब श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को उठाना है, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को उठाना है। साथ में अपने हाथ को पंजों को भी उठाना है। फाइनल पोजीशन में चिन्ह को और प्रेस करना है, एड़ियां मिला के रखना है। यथाशक्ति रुकना है। यथाशक्ति रुकने के बाद धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने चिन्ह को जमीन की तरफ लेके आना है। बिल्कुल धीरे धीरे चिन्ह को जमीन की तरफ लेके आइए। नाक को जमीन से लगाइए, कपाल को जमीन पर लगाना है। वापस दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है, चिन्ह को जमीन पर लगाना है। ये अभी हमने किया था निरालंब भुजंगासन। इस आसन को करने से हमारे कमर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस आसन के अभ्यास से कमर संबंधी विकार कभी नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल भी हमारा बढ़ता है। अब हम करेंगे अर्ध सल्भासन। दोनों हाथों को अपनी जांघ के नीचे रखना है, दोनों हाथों को अपने पैरों के नीचे रखना है। हथेलियां जमीन की तरफ, चिन्ह को जमीन पर लगा के रखना है। अब अपने श्वास भरते हुए अपने सीधे पैर को उठाना है। श्वास भरते हुए सीधे पैर को उठाइए,
पैरों को घुटने से सीधा रखना। लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने इस आसन का अभ्यास किया था। पैरों को घुटने से सीधा रखना है। पैरों को घुटने से दाएं बाएं झुकाना नहीं है। श्वास सामान्य चलना, सीधे पैर से करना है। बायां पैर जमीन पर टिका हुआ रहेगा। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को जमीन की तरफ लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे। अब इसी प्रकार बाएं पैर से करना है। श्वास भरते हुए अपने बाएं पैर को उठाना है। इन आसनों का जब अभ्यास अच्छे से हो जाता है तो हम अधिक से अधिक या कम से कम 30 सेकंड और अधिक से अधिक 2 मिनट तक इस आसन को रोक सकते हैं। आसन का अच्छा अभ्यास होने के बाद ही इसको होल्ड की स्थिति में हम करेंगे। धीरे धीरे वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को पैरों को नीचे की तरफ लेके आएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। अभी हमने किया है अर्ध शलभासन। अब इसी के बाद हम करेंगे पूर्ण भुजंगासन। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ के कंधे के पास में रखना है। चिन्ह को जमीन पर लगा के रखना है। अपने कपाल को जमीन पर लगाइए। अब श्वास भरते हुए नाक चिन्ह जमीन से टच करते हुए ऊपर की तरफ उठना है। श्वास भरते हुए उठिए ऊपर की तरफ। श्वास भरते हुए दोनों हाथों के ऊपर वजन देना। लास्ट टाइम भी हमने इस आसन का अभ्यास किया था, पूर्ण भुजंगासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना है। दोनों पैर के पंजों को सिर पे लगाने का अभ्यास करना है। अभी जितना आपसे मोड़ सकते हैं उतना मोड़ना है। कोशिश करना है हमारी नाभि जमीन पर टिकी हुई रहे, पेट को ज्यादा उठाना नहीं है। दोनों हाथों के ऊपर समान वजन दे के रखना है। यथाशक्ति करना है आपको। रोकने का अभ्यास करना है। कम से कम 30 सेकंड तक रोक सकते हैं हम इसको, बिल्कुल धीरे धीरे। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए पहले अपने दोनों पैरों को जमीन पर लेके आइए। अब लंबी गहरी सांस लेना है। दोनों पैरों की एड़ियों को मिलाइए। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ते हुए चिन्ह को जमीन पर लाना है। सामने देखते हुए पहले चिन्ह को लाना है, फिर नाक को, फिर कपाल को। दोनों हाथ नीचे की तरफ रखना है। अभी हमने किया है पूर्ण भुजंगासन। पूर्ण भुजंगासन के अभ्यास के बाद हम करेंगे पूर्ण शलभासन। दोनों पैरों से शलभासन करना है। दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे रखना है। ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसनों की श्रेणी में आता है। शलभासन। दोनों पैरों को श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाइए। चिन्ह को जमीन पर लगाना है। पैरों को घुटने से सीधा रखना है। फिर से वापस धीरे से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैर को जमीन की तरफ लेके आना, बिल्कुल धीरे धीरे। रिलैक्स करना है। दोनों हाथ वापस सिर के नीचे रखिए। दोनों पैरों में अंतर रखना है। आंखें बंद रखना है। लंबी गहरी सांस लेना है। लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। मकर आसन। दोनों पैरों में अंतर रखना है। आंखें बंद। लंबी गहरी सांस लेना है। लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। अभी जो हमने आसन किया है, इस आसन को करने से शरीर में अगर कहीं किसी प्रकार का कोई दबाव या खिंचाव आ रहा हो तो अपनी श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देते उस भाग को ढीला छोड़ना है और ढीला छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लेना है। लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। इस आसन की स्थिति में हमारे उदर पृष्ठ पर अतिरिक्त भार आया है। शरीर के पीछे वाला भाग एड़ी से लेकर कमर तक के भाग पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है। शरीर के पीछे वाला भाग नाभि से लेकर चिन्ह तक के भाग पर अतिरिक्त दबाव आया है। इन सभी अंगों को ढीला छोड़ना है। अपनी सांस सामान्य चलने देना। सांस को रोकना नहीं है। धीरे से अपनी आंखें खोलना है। दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाना है। दोनों हाथ साइड में रखना है। बैठक की स्थिति में आना है। बैठ जाइए। पैर लंबे करना है। अभी हमने पेट के बल उल्टे लेटने वाले में 3 आसनों का अभ्यास किया था। हेलो। अब हम बैठकर करने वाले आसनों में पश्चिमोत्तान आसन के पूर्व आसन जानु सिरा आसन,
इसको हम लोग जब आपका सेशन चलता है तो कंडीशनिंग एक्सरसाइज के रूप में आप लोग सभी लोग इस आसन को करते हैं। अभी हम इसको पहले देख लीजिए किस प्रकार करना है। अपने सीधे पैर को घुटने से मोड़ना है, सीधे पैर के पंजे को बाईं जंघा के ऊपर रखना है। अब दोनों हाथ को कंधे के सीध में उठाना है। 1 उठाइए दोनों हाथ को कंधे के, 2 में दोनों हाथ को कंधे के सीध में उठाना है, 3 में हथेली घुमाना है, हाथ दोनों हाथ को कान के पास लेके जाना है, 4 पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है, जानु सिरासन। अब श्वास भरना है, लंबी गहरी श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे दोनों हाथ के पंजे को से दोनों पैर के अंगूठे, पिंडलियां जो आसानी से पकड़ सकते पकड़ना, दोनों हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ना है, सिर को घुटने से लगाना है, यथाशक्ति करना है। यथाशक्ति करने के बाद वापस श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके आएंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, पूरे शरीर को ऊपर खींचिए, दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे कंधे के सीध में, हथेली आसमान की तरफ रहेगी, दोनों हाथ की हथेलियों को घुमाना है जमीन की तरफ, धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आना है। अब सभी लोग हम साथ में करेंगे, सभी लोग साथ में करेंगे। सीधे पैर को घुटने से मोड़िए, सीधे पैर के पंजे को बाईं जंघा के ऊपर लगाइए, 1 2 में दोनों हाथों कंधे के सीध में रखिए, 2 3 हथेलियों को आसमान की तरफ घुमाइए, 4 दोनों हाथों को कान के पास लेके जाइए, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए और खींचिए, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है, 5 दोनों हाथ से पैर के अंगूठों को पकड़ना है, सिर को घुटने से लगाना है, जानु सिरासन। जैसा कि आसनों का नाम आपको ज्ञात होगा कि जिस प्रकार हमारे शरीर की आकृति होती है उसी प्रकार आसनों के नाम रखे गए हैं। कहीं ऋषि मुनियों के नाम से रखे गए हैं, कहीं पशु पक्षियों के नाम से। आसन को छोड़ना है, श्वास भरते हुए वापस हाथ को ऊपर की तरफ लेके आइए, दोनों हाथ को सीधा रखते हुए ऊपर की तरफ उठाना है, दोनों हाथ कंधे के सीध में लेके आना है, हथेलियां जमीन की तरफ, दोनों हाथों को नीचे लेके आना है, पैरों को खोलना है, सीधा करना है, दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाना है। अब इसी प्रकार अपने बाएं पैर से करेंगे, बाएं पैर को घुटने से मोड़ना है, बाएं पैर के पंजे को दाहिनी जंघा के ऊपर रखना है, दोनों हाथ कंधे के सीध में उठाना है, हथेलियां आसमान की तरफ लेना है, दोनों हाथों को कान के पास ले जाना है, दोनों हाथों को श्वास भरना है, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है, दोनों हाथ से पैर के अंगूठे पकड़ना है, सिर को घुटने से लगाना है। आप यथाशक्ति रुकने के बाद श्वास भरते हुए दोनों हाथों को वापस लेके आना है, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, पूरे शरीर को ऊपर खींचिए, दोनों हाथ कंधे के सीध में लाना है, हथेलियां जमीन की तरफ, दोनों हाथों को नीचे लेके आना है, पैरों को खोलना है, दोनों पैर मिला के रखना है। जानु सिरासन का विपरीत आसन होता है उष्ट्रासन। अभी हम जब अगला सेशन आएगा उस आसन का अभ्यास हम उसमें करेंगे। आज का जो सेशन है हमारा यहीं पर समाप्त हो रहा है। जैसा कि बैठना है वज्रासन, सभी लोग बैठ जाइए, रिलैक्स होकर बैठना है सभी लोगों को। जैसा कि गहरन संहिता के अनुसार 84 लाख योनियों के अनुसार 84 लाख आसन बताए गए हैं। इन आसनों के नाम कहीं पशु पक्षियों के नाम से, कहीं ऋषि मुनियों के नाम से, कहीं शरीर की आकृतियों के अनुसार रखे गए हैं। सर हाँ योगेश जी बताएं। जी सर, हमारा टाइम थोड़ा अप हुआ है, ज्यादा हुआ हमारा टाइम। सर अगर हमारा सेशन, क्योंकि इसके बाद हमारा एक उष्ट्रासन बच गया था, लेकिन वो अगले सेशन में हम लोग करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग, हम सभी लोग स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हुए हैं, योग का महत्व सर ने बताया है। योगासन का तभी महत्व और अधिक बढ़ जाता है जब हम इसकी आदर्श स्थिति से करते हैं, आने और जाने की स्थिति, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोजीशन है, लाभ ज्यादा मिलता है। अब हम सर हमारा यही सेशन समाप्त हुआ है। ठीक। जी जी सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है योगेश जी।
तो बच्चों, जैसे कि अभी आप लोगों ने कुछ आसन परफॉर्म किए हैं और आज हमारे पास में इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं आया है। एक प्रश्न जरूर आया है जो कि ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि टेबल टेनिस में योग का क्या कारण है, या टेबल टेनिस के सेशंस में योग क्यों कराया जा रहा है। तो मैं उन्हें ये बात बताना चाहूंगा कि जब हम लोगों ने व्हेन वी स्टार्टेड द सेशन, we had emphasized the importance of yoga on the means importance of yoga for a sportsman, for a player, especially in table tennis. एक बार और छोटी सी मैं जानकारी देकर के आज के सत्र के हम समाप्त करेंगे कि देखिए, कोई भी बॉडी, कोई भी शरीर यदि कुछ काम कर रहा होता है तो उसमें उसको टोटल गवर्नेंस में 3 तरीके के नर्वस सिस्टम्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो टेबल टेनिस जब हम खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली तीनों नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में काम करते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में जो भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी इच्छा से नहीं चलते। आप चाहें तो अपनी इच्छा से सांस लेना या अपनी इच्छा से अपनी धड़कनों को रोकना, आप नहीं, मतलब यू कैन नॉट स्टॉप योर हार्ट बीट्स और योर ब्रीदिंग और योर डाइजेस्टिव सिस्टम और योर एक्सक्रीटरी सिस्टम विद योर विल। दे कैन नॉट बी गवर्न्ड बाय योर आवर कॉन्शियसनेस। वो हमारा कोई ना कोई जो ऑटोनोमस मैकेनिज्म है, जो सबकॉन्शियस स्टेट है, दैट इज गवर्निंग आवर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बट through yogic exercises, what you see, there is a terminology called kinesthetic sense. आप लोग अगर कभी किसी मैदान में जा रहे होते हैं और अचानक कोई चीज आपको हवा में आकर के लगने वाली होती है, sometimes somebody loudly shouts escape, save, बचो। तो जिस डायरेक्शन से कोई वो ऑब्जेक्ट आ रहा होता है तो हमारा हाथ अचानक बिना देखे उसी डायरेक्शन में जाता है और हम उस डायरेक्शन से बचने की कोशिश करते हैं। That is called kinesthetic sense. Similarly, in table tennis, we are having some 600 or 630 group of muscles. Those all muscles are also governed with the nervous system. Nervous system, muscular system, these all systems, well, in a unification they are working. You are executing a service, or you are playing a rally, or you are performing a top spin. Your brain is involved, then the governance of your brain through some major group of muscles which is helping you. Suppose you are playing top spin, तो आपको पता है टॉप स्पिन के अंदर आपकी पीठ की कौन कौन सी मसल्स यूज हो रही हैं। There are serratus anterior, serratus posterior, latissimus dorsi. Multiple group of muscles are involved, but we usually think that only deltoid or forearm muscles or biceps, triceps, these muscles are involved. No, there are a huge group of muscles which are involved in executing the skills. So these yogic activities, these yogic asanas are helping directly, indirectly, actively, passively. Those all core group of muscles, agonist and antagonist movements are taking place, which will help you in executing or excelling your game of table tennis. Not only table tennis, but all sports, all disciplines. So I think आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा. And tomorrow and Sunday, tomorrow is an adaptation day for you all, and Sunday is a holiday. So Monday 9:45 a.m. we will be resuming again. Dr. Som Shankar Chatterjee, who is a physical education and sports laureate and senior faculty in a university in Kolkata, will be delivering his talks, and he will be asking you to perform some exercises. Today we had done physical exercises or postures or asanas. Definitely they are helping you in developing your concentration also, but in Monday session we'll be doing some different type of activities, some different type of exercises. So please be there at 9:45 a.m. Again, we are thankful to Shri Yogesh Malviya ji, who has given a very good demonstration and has shared some of the good activities with us. He has taught us very how to perform these activities. Again, we are thankful to Sports Authority of India and the Table Tennis Federation of India for providing us this platform. Tomorrow and Sunday, I am again saying, because this Monday we had received so many queries that we logged in on Saturday and Sunday, and where were you all? So Saturday and Sunday is not an activity day, so we'll be resuming again on Monday. Till then, have a good day, have a good weekend. Goodbye. Thank you.